Hello and welcome back, dear friends, once again at Lit eCity YouTube channel, the one-stop destination for English learning resources. दोस्तों हमारा आज का वीडियो है एलन टेट का रिमार्केबल आउटस्टैंडिंग एसे टेंशन इन पोइट्री। ये वो ऐसे है जिसके अंदर एलन टेट, जो एक न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल से बिलोंग करने वाले अमेरिकन क्रिटिक थे, he developed the concept of tension which is a tool for evaluation in poetry. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एसे। लाइक ऑलवेज a brief introduction to the essayist Alan Tate. He was a prominent American poet, critic and essayist associated with the New Criticism movement. New Criticism movement जो 1930s और 40s में अमेरिका से स्टार्ट होता हुआ पूरा इसने यूरोपियन thinking of how to evaluate literature, how to read literature, उसको influence किया था। इसके साथ ही he was a key member of the Southern Agrarian Writers. It was a group of writers जो वहाँ की सदर्न अमेरिका की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स थे। दे वर आल्सो राइटर्स, क्रिएटिव कंटेंट मेकर्स, और इन लोगों ने सिंप्लिसिटी के ऊपर एम्फेसाइज किया था। Now his critical work, Alan Tate के जो भी हैं, वो focused on establishing objective standards. हम जानते हैं न्यू critics are always of the mind that when we judge poetry, we should avoid subjective point of view. पर्टिकुलर एक क्रिटिक किसी वर्क के बारे में क्या सोचता है, उससे हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को डिटैच करके एक ऑब्जेक्टिव वे में, एक साइंटिफिक वे के अंदर वर्क को जज करना चाहिए, इवेलुएट करना चाहिए। एंड दैट इज वाई लाइक मोस्ट ऑफ द न्यू क्रिटिक्स मूविंग अवे फ्रॉम बायोग्राफिकल और हिस्टोरिकल अप्रोचेस। जो न्यू क्रिटिसिज्म के एडवेंट से पहले जो क्राइटेरिया ऑफ जजिंग अ पोएम था, वो या तो आइदर reading and learning about the biography of the poet, or to think about the historical, political, socio context, उन सब से परे जाकर they focused on what is on the paper, what is the text itself, examining the formal properties, what are the properties like paradox, irony, metaphor, जो वो चीजें जो एक वर्ड को पोइटिक वर्ड बनाती हैं, एंड इंटरनल कोहेरेंस, और व्हाट वी कैन से ऑर्गेनिक यूनिटी। ऑर्गेनिक किस तरह से ऑल एलिमेंट्स ऑफ द पोएम सपोर्ट ईच अदर, दे काउंटर बैलेंस ईच अदर, इसके ऊपर इन लोगों का फोकस था। नाउ coming to this essay, Tension in Poetry, it is one of his most influential critical essays. And in this particular essay, he proposes the idea of tension as a key quality for understanding and evaluating good poetry. And this essay is actually a response to two problematic trends in the 20th century poetry, especially the first half of the 20th century. Poetry as mere communication of feeling, that is, किस तरह से पोइट्री जो है मास कम्युनिकेशन, मास लैंग्वेज का यूज करके हमारे इमोशंस को एक प्रोपेगेंडा वे के अंदर इवोक करने की ट्राई करती है, एंड पोइट्री एज प्रोपेगेंडा और सोशल मैसेज। एंड दैट इज व्हाई द पर्पस ऑफ दिस एसे इज टू डिफाइन व्हाट मेक्स गुड पोइट्री, why some poems are good and others are bad, what should be the basis, what should be the criteria to judge these poems objectively. Now, Tate begins this essay by identifying a common feature which is found in all many good poems, and which are considered to be including some those poems which are neglected, जिनके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती है। Tate says that these all good poems, they share some particular feature, और इस फीचर को he names, this quality he names as tension for sharper critical understanding. He further explains that a poetic work possesses a distinct quality, a special quality which comes from the ultimate effect of the whole, means not one particular part or
one particular component or element. This whole, this organic whole results from a configuration of meaning that critics have duty to examine. ये जो configuration of meaning है, ये जो setting है जिसके अंदर we will understand further how the denotation and connotation or literal and figurative, they both work together, and a critic must try to evaluate and examine the coherence, the unity of these elements. He emphasizes that there are many kinds of good poetry, as many as there are good poets. So, which basically means that a writer can write a good poem in variety of ways. There is no one particular way. This results in multiple styles. So, if we look throughout the history, different schools have demanded that only one particular kind of poetry be written. Naturally, their preferred kind. अगर कोई मार्क्सिस्ट स्कूल वाला है तो वो पोइट्री प्रेफर करेगा in which talks about the social and economic conditions, feminist point of view से, post colonial, romantic, neoclassical, जो भी schools हुए, they thought that their particular way of evaluating or judging a work is the best one, and poetry should be written according to only that particular period. For example, Tate identifies several such categories. Political category, in which poetry is written for ideological causes or to disseminate, to promote particular political ideas. Picturesque poetry, poetry of Wordsworth and other writers, Keats, that celebrate local settings. Then there is didactic poetry by Dryden, Pope. They serve community needs. So, according to Tate, different schools have different approach towards poetry, and the problem is that each school considers कि उनका जो मेथड है, उनका जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री है, दैट इज द बेस्ट वन, और सारी अच्छी पोइट्री उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. देन he introduces that what is happening in the present time. For this, he introduces the concept of fallacy of communication to critique a common misunderstanding sorry about how poetry works. Tate argues that poetry which has this particular fallacy, which has this particular error, it treats language as a transparent medium. Means it thinks, ऐसा जो पॉइंट होता है वो ये मान के चलता है कि लैंग्वेज बहुत ट्रांसपेरेंट है. जिस तरीके से पॉइंट ने उसे एम्प्लॉय करा है, सेम उसी तरीके में रीडर उसे पढ़ रहा है. एंड दिस मीडियम, दिस व्हीकल कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस प्री एग्जिस्टिंग फीलिंग्स और आइडियाज, जो पहले से मन के अंदर है, उनको रिप्रेजेंट करने में काम आए. एंड फॉर दिस पर्पज, फॉर दिस एम, सच पोइट्री एम्प्लॉयज मास लैंग्वेज which is simplified, जो अधिकतम लोगों को समझ में आए, cliched expression which is not difficult to decipher, जिसको समझना बहुत आसान है. And what is the purpose? Designed for immediate emotional impact rather than precise meaning. In particular cliches से, in particular simplified formula से क्या होता है? Common public, mass public, they are evoked for a particular emotion. उनके मन में वो भाव आता है, but the poetry loses the preciseness, वो exactness उससे चली जाती है. This type of poetry arouses vague feeling. We don't exactly know as a reader what the poet is trying to aim, लेकिन वो एक prefabricated formula से वो feeling होती है, and there is no intellectual rigor, कोई हार्ड वर्क जो नेसेसरी होता है जेन्युइन पोएटिक एक्सपीरियंस के लिए, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है. पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोपेगेंडा वर्ड्स एग्जाम्प्लीफाई दिस टाइप ऑफ फेलेसी, क्योंकि उनका पर्पस ही मास को पूरी तरह से किसी एक पर्टिकुलर इन्वोकेशन के, किसी एक पर्टिकुलर इमोशन के लिए चार्ज अप करना होता है. नाउ टेट प्रोवाइड्स टू एल्यूसिडेट, अपनी बात को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल देता है. अमेरिकन पोइट
एडना सेंट विंसेंट मिले की पोएम जस्टिस डिनाइड इन मैसाचुसेट्स. It is an example of mass language and sentimentality. The poem suggests that the splendid ancestors of this land made the earth good, but now it has gone bad, arid, बंजर ये हो गई है. The title, it reveals a historical incident involving Staccio and Vanzetti execution. ये दोनों इटालियन माइग्रेंट्स थे जिनको अमेरिकन गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट कर दिया था. इनके एग्जीक्यूशन को बताने के लिए विंसेंट ने मिले ने जो पर्टिकुलर एनालॉजी मेटाफर यूज करे वो एरिड लैंड के करें. अकॉर्डिंग टू टेट द कनेक्शन बिटवीन दिस पॉलिटिकल इवेंट एंड एग्रीकल्चर डीके इज नेवर लॉजिकली एस्टेब्लिश्ड. व्हाई दिस कनेक्शन? द पोएम communicates effectively only to readers who already share the poet's feeling about the social justice. जो इस इटालियन बैकग्राउंड से आते हैं, those who condemn this act of execution, those even who know that such thing happened, उनके लिए तो पॉसिबल है इस कनेक्शन को पाना. For those who don't share these feelings, the poem becomes impenetrably obscure. They are failed. They are not able to understand the connection between the land becoming arid and two Italian migrants getting executed. तो ये टेट का बेसिक आर्ग्यूमेंट है कि ये मैकेनिकली फोर्स्ड कनेक्शन नहीं होना चाहिए पोएम और उसके मीनिंग के बीच में. Tate next makes a crucial distinction between two fundamentally different types of difficult or obscure poetry. First is bad obscurity, which is pseudo complexity. Now, according to Tate, bad obscurity occurs when poetry appears simple on the surface. Surface पे वो लगती है बिल्कुल simple, clear, but it lacks genuine coherent meaning beneath the surface. It is obscurity that results from confusion, imprecision, और रिलायंस ऑन वेग इमोशनल एसोसिएशन. तो देखिए किस तरह से पैराडॉक्सिकल वे के अंदर टेट कहते हैं कि अपेरेंटली ऊपर से पोएम लगती है सिंपल, बट द पोएम डज नॉट ऑफर समथिंग रिच एंड कॉम्प्लेक्स. दिस टाइप ऑफ ऑब्सक्योरिटी, व्हाई दिस सिंपल स्टेटमेंट इज रिटन, व्हाई दिस पर्टिकुलर इमोशन इज इवोक्ड, देयर इज नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन. तो ऊपर से भले ही पोएम सिंपल हो, बट इट इज ऑब्सक्योर बिकॉज इट डज नॉट ऑफर समथिंग पोएटिक एंड रिच. इट डज नॉट हैव एनी कॉनोटेटिव और फिगरेटिव मीनिंग. Such type of obscurity is actually pseudo complexity. It is simple only on surface but meaningless or obscure on the deeper evaluation. In contrast, there is good obscurity or genuine complexity. It arises from genuine intellectual or emotional complexity. On the surface, the poems appears difficult. जो पोएम के एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रास्ट करते हैं. इट इज केयरफुली स्ट्रक्चर्ड एंड डेलिबरेटली क्राफ्टेड. व्हेन यू इंस्पेक्ट डीपर, जब आप गहराई से इसको देखते हो, देन यू केम टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कनेक्शन जो एक वर्ड और दूसरे वर्ड, इमेज और आइडिया के बीच में सिचुएटेड है. जस्ट लाइक मेटाफिजिकल कंसीट्स जिनको टेट ने फर्दर ऐसे के अंदर एप्रिशिएट भी करा. दिस टाइप ऑफ डिफिकल्टी रिवार्ड्स द अटेंटिव रीडर जो अपना टाइम और एफर्ट लगा रहा है उस पोएम को समझने के लिए. उसके लिए एक रिवार्डिंग चीज होती है. इट प्रोवाइड्स अ रिचर मीनिंग थ्रू सस्टेन्ड एंगेजमेंट. सो दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड बैड ऑब्सक्योरिटी, इट चैलेंजेस द कॉमन एजम्पशन जो जनरली मानकर चला जाता है दैट डिफिकल्ट पोएट्री इज ऑलवेज प्रिटेंशियस. वो डिफिकल्ट होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, और दैट क्लियर पोएट्री इज ऑलवेज बेटर. क्लियर का मतलब ट्रांसपेरेंट और सिंपल.
तो टेट यहां पर शो करते हैं दैट सिंप्लिसिटी डज नॉट मीन गुड पोएट्री। पोएम के अंदर सिंप्लिसिटी के साथ अगर डीपर मीनिंग नहीं है तो दैट सिंपल लैंग्वेज इज ऑफ नो यूज। Now, moving forward, Tate provides another example of a problematic verse, or what we can say a poem in which there is only denotation. He selects a poem by James Thomson, the 19th century lyric writer, poet, and the name of the poem is The Vine. And he particularly focuses on these lines. The wine of love is music and the feast of love is song. तो ये जो पर्टिकुलर लाइंस हैं, इसके बाद टेट एनालिसिस करते हुए कहता है कि देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द मेटाफर, देयर इज नो कोहेरेंट मीनिंग, इनका आपस में कोई रिलेटेड लिटरली या मेटाफरिकली कोई सेंस नहीं है। म्यूजिक एंड सॉन्ग इंटरचेंजेबल, नो स्पेसिफिक रेफरेंस, मतलब द वाइन ऑफ लव इज सॉन्ग एंड द फीस्ट ऑफ लव इज म्यूजिक। अगर ऐसा भी कर दे, इससे क्या पता चलता है? मानो टॉमसन ने किसी प्री फैब्रिकेटेड फार्मूला के द्वारा इन लाइंस को सेट कर दिया, नो स्पेसिफिक रेफरेंस, और एक पर्टिकुलर इमोशनल स्टेट को रेफर करता है, वेग है, क्लैरिटी नहीं है कि वो किस पर्टिकुलर पॉइंट को रेज करना चाह रहा है, और इट कुड बी रिप्लेस्ड बाय एनी पैराफ्रेज। ये 4 ऑब्जेक्शन टेट लगाता है इन लाइंस के ऊपर, और इसके द्वारा शो करता है दैट हाउ दिस पोएम डजंट हैव एनी डीपर मीनिंग। नाउ इफ थॉमसन्स पोएम इज अ केस ऑफ पुअर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब केवल इसमें लिटरल मीनिंग है, कोई इन डेप्थ इंटेंशन नहीं है, टेट प्रोवाइड्स एन एग्जांपल ऑफ द अपोजिट प्रॉब्लम, दैट इज फेलेसी ऑफ मियर डेनोटेशन। इसके अंदर क्या होता है कि केवल और केवल डेनोटेशन होता है। द पोएम हैज क्लियर लिटरल मीनिंग बट फेल्स टू लिफ्ट लैंग्वेज टू सिंबॉलिक और इमोशनल सिग्निफिकेंस, उसके अंदर केवल दूसरी एक्सट्रीम पर होता है। तो इसके लिए टेट जो है वो कन्वे करता है टॉमस काउली की पोएम, 100 लाइन पोएम से, अब्राहम काउली का पोएम है हिम टू लाइट। इन दिस पोएम व्हाट डज अब्राहम काउली डज? He gives an inventory, एक लिस्ट देता है of things light does in the universe. देखिए टॉमसन ने केवल मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज करी थी, वाइन, और उसको सॉन्ग बताया, ये बताया, और कहीं पर भी उसका लिटरल मीनिंग एक्सटेंशन ही था। यहां पर इसने केवल एक लिस्ट प्रोवाइड करी है काउली ने। He analyzes the poem and points out it's logical कि हाँ भाई लाइट जो है इन चीजों के फंक्शन करती है, इट्स लॉजिकल, बट द एब्सर्ड इमेजरी एंड द पोएम हैविंग स्ट्रॉन्ग एक्सटेंशन बट वीक इंटेंशन। इसका जो एक्सटेंशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन इंटेंशन 0 है। जबकि टॉमसन वाली पोएम के अंदर क्या था? इंटेंशन बहुत डीप था, उसके अंदर फिगरेटिव मीनिंग था लेकिन एक्सटेंशन 0 था। तो ये 2 एक्सट्रीम्स हो गए जो वो 19th सेंचुरी की पोइट्री से उठाता है। एक टॉमसन की पोएम जिसमें इंटेंशन या फिगरेटिव मीनिंग है लेकिन लिटरल मीनिंग 0 है, और दूसरी अब्राहम काउली की पोएम जिसके अंदर लिटरल मीनिंग तो बिल्कुल लॉजिकल चलता है लेकिन कोई डीप सिग्निफिकेंस उसके अंदर नहीं है। So he comes to the most important part of the essay, the solution, and tries to explain what makes a poem good. कि एक पोएम अच्छी कैसे बनती है, और इसके लिए he introduces the term tension and argue that it is this special quality in good poetry. Now, Tate explains tension in following terms. First, it is basically a technical term derived from logic, and for this he takes 2 words, intention and extension, and removes prefixes intention से in और extension से x, और इन दोनों को हटाने पर हमारे को एक ही वर्ड मिलता है, that is tension. So he says that
पहले ये बात करता है कि व्हाट इज एक्सटेंशन, हम ऑलरेडी देख चुके, द डेनोटेटिव पार्ट विच इज द लिटरल डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स। इट इज अबाउट कॉन्क्रीट स्पेसिफिक रेफरेंसेस टू द ऑब्जेक्ट, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, विच आर क्वाइट क्लियर in their presentation. For example, if we take the line the rose is red, we are talking about a real red colored rose flower. So it's very easy to understand, that is denotation. On the other side, what is intention? It is connotation, the suggested, the implied meaning, जिसके अंदर जो मीनिंग है वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है, उससे सजेस्ट हो रहा है। इट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड सिंबॉलिकल सिग्निफिकेंस, जो हम अपनी कल्चर, अपनी सोसाइटी, अपने लिटरेचर के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को एक सिंबॉलिकल मीनिंग देते हैं, वो होता है। फॉर एग्जाम्पल द सेम लाइन द रोज इज रेड, यहां पर रोज एक्वायर्स मीनिंग ऑफ लव, पैशन, ब्यूटी, रोमांस, परफेक्शन। इनके बीच का ये कनेक्शन रैंडम है, ये सिंबॉलिकल वैल्यू कल्चर से आई है, सोसाइटी से आई है, या रैंडमली भी आ सकती है, बट यहां पर हम लिटरल मीनिंग की बात नहीं कर रहे। सो दो मीनिंग कौन से हो गए? एक वर्ड के एक एक्सटेंशन जो डेनोटेटिव है और एक इंटेंशन जो कॉनोटेटिव है। नाउ व्हाट इज टेंशन? Tension is having both qualities, denotation and connotation. So good poetry does not depend upon one particular spectrum. केवल एक साइड से ही नहीं होती है. It has clear literal meaning, that is extension, and rich symbolical meaning, that is intention, without sacrificing either. मतलब extension भी उतना ही जरूरी है जितना intention, creating unified coherent whole. तो हमने देखा जो दो एग्जाम्पल थे, जेम्स टॉमसन वाले के अंदर इंटेंशन नहीं था, एक्सटेंशन नहीं था, और काउली वाले के अंदर इंटेंशन नहीं था। दैट इज वाई बोथ वर द एग्जाम्पल ऑफ बैड पोएट्री। लेकिन एक अच्छी पोएम के अंदर दोनों का बराबर बैलेंस व्यू होना जरूरी है। इट इज the significance of this concept is that it provides objective criteria for evaluating poetry and explains why some poems are better than others, because these poems have the balance. इनके अंदर दोनों का literal और figurative meaning का proper balance होता है। एक बार फटाफट इस चार्ट से अपन देख लेते हैं द थियरी ऑफ टेंशन के अंदर। तो एक्सटेंशन क्या हुआ? लिटरल, डेनोटेटिव, कॉन्क्रीट और प्लेन सेंस, जबकि इंटेंशन हुआ मेटाफोरिकल, कॉनोटेटिव, एब्स्ट्रैक्ट और फिगरेटिव सेंस। और टेंशन इन दोनों के बीच का होल्ड बोथ फोर्सेस इन डायनामिक बैलेंस। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो टेट है वो एग्जाम्पल लेता है जॉन डन की पोएम अ वैलेडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग का। इट इज फॉर हिम अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टेंशन। तो बहुत फेमस एनालॉजी, आर्स टू सोल्स देयरफॉर व्हिच आर वन, though I must go, and they are not yet a breach but an expansion, like gold to airy thinness speed. Now we know that the speaker Donne is saying goodbye to his lover and comparing their souls to the gold being beaten extremely thin. टेट एनालाइज करते हुए कहते हैं कि टू लवर्स सोल, द सोल ऑफ दीज टू लवर्स are spiritually united and indivisible. Though physically they are going afar from each other, their souls are still indivisible. But the problem for the poet is how to create a concrete image for something non-spatial. For example, souls are not concrete things. उनको हम देख नहीं सकते। तो poet के सामने प्रॉब्लम क्या है? कैसा ऐसा मेटाफर प्रेजेंट करें कि जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है उसको एक विजुअल इमेजरी से बता सके। सॉल्यूशन, कंपेयर इट टू गोल्ड बीटन इनफाइनाइटली थिन। देखिए अब कितना सुंदर पैराडॉक्स क्रिएट किया गया। सोल्स आर नॉन स्पेटियल, वो उनका कोई स्पेस नहीं होता, लिमिटेशन नहीं होता, दे आर इनफाइनाइट एंड एब्स्ट्रैक्ट। वाइल ऑन द अदर एंड गोल्ड इज स्पेटियल, वो एक मेटल है, उसका एक फिक्स अमाउंट, वॉल्यूम और स्पेस है। लेकिन ये जो फाइनाइट फिजिकल इमेज गोल्ड है वो सक्सेसफुली कंटेन्स द इनफाइनाइट स्पिरिचुअल मीनिंग। इस तरह से लिटरल मीनिंग और उसके साथ छुपा हुआ डीपर मीनिंग
दोनों बहुत परफेक्टली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड डन सक्सेसफुली हार्मोनाइज दीज टू एस्पेक्ट. For Tate, Dunn's metaphor works perfectly. पहली बात, there is clear denotation because any reader can literally picture, can think about, can visualize gold leaf being hammered until it is extremely thin. So extension is very logical, very clear, and then the image beautifully suggests soul remaining united despite physical separation. जिस तरह से बीट करके गोल्ड में एक्सपेंशन होता रहता है, उसी तरह से दो बॉडीज भले एक दूसरे से दूर हो रही हो, बट देयर सोल्स आर यूनाइटेड इवन इन दिस सेपरेशन. So there is no contradiction between the literal meaning extension and symbolic meaning intention. They work together. That is what makes this poem, this particular image perfect. So intention and extension are here one and they enrich each other. This further shows, Tate further shows how Donne achieves tension even individual word choices. वही वो टेट कहना चाह रहे हैं, नॉट वन पर्टिकुलर एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट. द वर्ड येट इन एंड्योर, नॉट येट अ ब्रीच. दिस वेरी स्मॉल वर्ड येट विच जॉइंस दीज टू एंड्योर नॉट येट अ ब्रीच, जो एडवर्ब है, इट रिवील्स Donne's sophisticated awareness. Awareness of what? It very subtly, yet अभी तक ब्रीच नहीं है, अभी तक ब्रेक नहीं है. It acknowledges human weakness and imperfection. अभी their souls are perfectly united, but who knows what may happen in future because it is nature of human beings. This shows Donne controls both the literal reality that humans are imperfect, they can fall, they can do things which they are not supposed to do, and the symbolic ideal, their love is transcendent, their love is beyond the bodies. तो यहां हमें पता चलता है किस तरह से एक छोटा सा वर्ड इन दोनों कॉन्सेप्ट को साथ में लेकर आ देता है. That's how good tension means every element in a poem, from overall metaphor जैसे इसके अंदर यूज करा, individual word choice जैसे yet का वर्ड यूज किया, must work successfully both literal physical level that is extension and the symbolical abstract level that is intention at the same time. हर वर्ड दोनों लेवल पर बराबर खरा उतरना चाहिए. Now when this happens perfectly, जैसा डन की पॉइंट के अंदर हमने देखा, द लिटरल एंड सिंबॉलिक मीनिंग बिकम इंसेपरेबल. दिस क्रिएट व्हाट टेट कंसीडर्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोएटिक अचीवमेंट, दैट इज कंप्लीट यूनिटी ऑफ मीनिंग. लिटरल एंड फिगरेटिव, डेनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव in extension and intention, they merge with each other. Tate now discusses two different strategies to achieve tension. दोनों का जो डायरेक्शन ऑफ वर्क है वो अपोजिट है. फर्स्ट इज मेटाफिजिकल स्ट्रेटेजी used by poets like John Donne and Andrew Marvell. These poets begin with the extensive or the literal denotative end. They start with very clear logical literal statement. फ्ली पोएम देख सकते हैं आप, या फिर एक्सटेक्सी देख सकते हैं. दे ऑल बिगिन विद द फिजिकल डिस्क्रिप्शन, विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग दैट इज कॉन्क्रीट. लॉजिकल रीजनिंग होते हैं, सन राइजिंग देख सकते हैं, क्लियर आर्ग्यूमेंट होता है, कॉन्क्रीट सिचुएशन होती है, रेशनल डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज होता है. तो दे स्टार्ट विद द डेनोटेटिव कोड. Then they push their poems towards intensive or symbolic meaning from the literal and building towards deeper, complex symbolical significance. Just like in Flea or in Sunrising or Valediction Forbidding Morning में. For example, a metaphysical poet might begin with a concrete image, compass in Valediction Forbidding Morning, which is a very concrete detail. Extension है, बिल्कुल उसको एक सर्किल बनाते हुए बताता है. Use logical extension to develop its symbolic meaning. बाद में बताता है किस तरह से अगर दोनों एक दूसरे के लिए faithful रहे, then
they will always be united. Love and separation. So this is how this strategy, the metaphysical strategy, works from denotative to connotative, from extension to intention. इसका जो रिवर्स है वो है सिंबॉलिस्ट स्ट्रेटेजी, जो W.B. येट्स या रिम्बाउड जो फ्रेंच पॉइट है उनके द्वारा यूज की गई है. रिवर्स, दे बिगिन एट द इंटेंसिव और कॉनोटेटिव एंड. सबसे पहले वो एक रिच सिंबल या सजेशन को यूज करते हैं. जस्ट लाइक W.B. येट्स अ प्रेयर फॉर माई डॉटर के अंदर एक एटमॉस्फेयर को इंट्रोड्यूस करता है जो डार्क है, बहुत ज्यादा विंड केओटिक है. दे यूज सिंबॉलिक लैंग्वेज, सजेस्टिव इमेजरी, जैसे सेलिंग टू बाइजेंशियम के अंदर फिश, फ्लैश एंड फाउल. देन दे पुश they push their poems towards literal grounding, starting from the symbolic and mysterious, then anchoring it in concrete reality. धीरे धीरे वो literal meaning की तरफ उसके भी आते हैं, जिससे एक रीडर grasp कर सके what they are trying to say. So a symbolist poet might begin with mysterious dream-like symbols and gradually connect them to recognizable human experience or emotion. दोनों स्ट्रेटेजी जो हैं वो रिवर्स है एक दूसरे के अप्रोच में. These two types of poets start from opposite ends of the spectrum, लेकिन great poets जो हैं, चाहे वो metaphysical strategy के हों, चाहे symbolic strategy के, they achieve tension. They just approach it from different direction. Metaphysical poet concrete से abstract और symbolist एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ. तो टेट ये बताते हैं कि दोनों तरीकों से क्या अचीव की जा सकती है, टेंशन अचीव की जा सकती है. नाउ टेट प्रोवाइड्स सम मोर एग्जांपल्स व्हिच ही कंसीडर्स एज द टच स्टोन. मैथ्यू आर्नल्ड का जो दिया गया कॉन्सेप्ट है टच स्टोन्स ऑफ पोएट्री, जिसके अंदर आर्नल्ड ये कहते हैं देयर आर सर्टेन पैसेजेस व्हिच शुड बी कंसीडर्ड एज द लिटमस टेस्ट, जिनको हमें बेस मानना चाहिए किसी भी पोएट्री को जज करने का. तो यहां पर एलन टेट अपने कुछ एग्जाम्पल बताते हैं जो उनके अकॉर्डिंग परफेक्ट टेंशन रखते हैं, जिनके अंदर डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव परफेक्टली यूनाइटेड है. लाइक थॉमस कैरियो की पोएम नाइटिंगेल, शेक्सपियर का सोनेट नंबर 73 और किंग लियर का पैसेज जहां पर लियर इज मॉर्निंग कार्डेलिया's डेथ. अकॉर्डिंग टू टेट दीज आर सम एग्जांपल्स. He tries to prove that good poetry does not have only literal meaning or symbolic meaning. They are fused, they are unified, harmonized. तब जाकर क्या क्रिएट होता है, पोइट्री के अंदर टेंशन क्रिएट होता है. In the end, Tate selects Francesca speech from Alighieri's Dante's Inferno, फिफ्थ कैंटो की जो लाइन्स है, एंड दिस इज हिज अल्टीमेट एग्जांपल ऑफ पोएटिक टेंशन. फ्रांसिस्का हु इज कंडेम्ड टू हेल फॉर एडल्ट्री, दांते उनको मीट करता है और शी इज विद हर लवर एंड शी डिस्क्राइब्स ऑन इंक्वायरी कि वो कहां से बिलोंग करती है, हर बर्थ प्लेस. The town where I was born sits on the shore, whither the poet descends to be at peace, together with the streams that follow him. This is the description of the town of Francesca. Now, Tate considers these lines perfect because they demonstrate how maximum meaning can be compressed into simple geographical description. On the surface, it is nothing, just a geographical description of the place where Francesca was born. So, extension पर क्या है? She provides geographical information, her birthplace, which is a coastal town in Italy, located near the river Po, where the river falls into the Adriatic Sea. But at the same time, जो मेन चीज क्या है, द सिंबॉलिक लेवल के ऊपर इट साइमल्टेनियसली कैरी प्रोफाउंड सिंबॉलिक मीनिंग रिलेटेड टू द करंट सिचुएशन फ्रांसिस्का इज इन. द पो रिवर बिकम्स फ्रांसिस्का. डिसेंडिंग मीन्स हर मॉरल डिसेंट इनटू सीन द क्राइम ऑफ और द सिन ऑफ एडल्ट्री. रिवर सीकिंग पीस, हर फ्यूटाइल सर्च फॉर रेस्ट फ्रॉम गिल्टी पैशन,
किस तरह से हर इमेज जो लिटरल है वो साथ के साथ फिगरेटिव भी मीनिंग जनरेट करती है। देन आयरनी इसके अंदर साथ के साथ है। द करेक्टर फ्रांसिस्का स्पीक्स अबाउट द पीस बट शी विल नेवर फाइंड पीस इन हेल। सो ये उसके सबकॉन्शियस में चलता रहता है। द विंड्स दैट बफेट हर, जो थपेड़ों की तरह उसके लग रही है, दे आर लाइक द स्ट्रीम्स दैट फॉलो द पो। तो नीचे वो अर्थ के ऊपर वो स्ट्रीम्स है वाटर की, ऊपर हेल के अंदर जिस पर्टिकुलर वो हेल में है, थर्ड या फोर्थ स्फीयर के अंदर, वहां गर्म तेज हवाएं हैं जो लगातार उनको वर्ल्ड विंड की तरह आकर लग रही हैं। हर सपोज सर्च फॉर पीस लेड टू द वेरी पैशन दैट डैम्ड हर। सो आयरनी भी एग्जैक्टली लाइन टू लाइन मैच होती है। देन देयर इज आल्सो द फोनेटिक टेक्सचर, जो इटालियन लाइंस जो ओरिजिनली डांते ने लिखी थी उसके अंदर सी, दोसे, डिसेंडे, सेगुआ की सी। So this particular repeated sound evoke the whistling wind and the streams, दोनों जो पो रिवर के साथ पीछे चलने वाली स्ट्रीम्स है और जिस हेल के अंदर फ्रांसिस का है वहां पर जो वर्ल्ड विंड है, दोनों की जो विस्लिंग साउंड है वो इस पर्टिकुलर लाइन में जो सोनिक इफेक्ट है उससे क्रिएट होती है। दिस सोनिक डायमेंशन एड्स अनदर लेयर ऑफ मीनिंग। तो इस तरह से, और लास्ट के अंदर सबसे बड़ी बात जो है, फ्रांसिस्का हरसेल्फ बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द sin. The most striking observation is that Francisca becomes identical with the landscape she described. जिस लैंडस्केप रिवर पो के पास का जो कोस्टल टाउन है, she herself becomes so. This represents the ultimate achievement of poetic tension, complete fusion of literal and symbolic. That is why Tate considers these lines as the perfect example of tension in poetry. जो लेसर पोएट्री होती है, इट सेक्रीफाइसेस वन डायमेंशन फॉर अनदर। या तो वो बहुत लिटरल होती है जैसे हमने देखा था उसकी पोएम अबाउट द लाइट, और या वो बहुत फिगरेटिव होती है जैसे जेम टॉमसन की पोएम द वाइन। दांतेज की लाइन के अंदर परफेक्ट बैलेंस पाया जाता है। So in conclusion we can say Tate's concept of tension provides a framework, a very objective framework for evaluating poetry based on how well it integrates concrete particularity with abstract significance. So great poetry maintains both literal and symbolic dimension. Best poetry achieves this fusion organically, not mechanically, and complexity should enhance rather than obscure meaning. ये कॉम्प्लेक्सिटी रिच करती है एक पोइट्री को, उसको वेग नहीं बनाती है। दिस इज ऑल माय डियर फ्रेंड्स इन टुडेज लेक्चर। आई होप ये पूरा ऐसे अब आपको समझ में आ गया होगा। कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोस, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।